Yes, live. Good afternoon. Ragadiroga Prasutanushas Anushatra Asishutaya Prasutanashish Shesha Osukamoha Pratidanajagal Yopurvavaitayo Sutasmai. Namaste. Good morning, everyone. I, Dr. Kundan Chaudhary, Associate Professor, J.J. Patel Institute of Ayurvedic Studies and Research, New Vallabhidanagar, Anand, Gujarat, heartily welcome you all in today's illuminating session on one of the unique concepts of Ayurveda, that is Basti Chikitsa. Today's session is coordinated by the team Panchakarma of GJPISR under the ever encouraging and adept management of Professor Dr. C.H. Babadia Sir, Director, GJPISR. As you all must be aware, GJPISR is a constituent college of CBM University. With the blessings of Mahatma Gandhi and insistent inspiration and encouragement of Loho Purusha Sardar Vallabhbhai Patel, Charutar Vidya Mandal, well known as CBM, was founded by the dedicated and far-sighted educationalist due Sri Bhai Kaka Patel and Sri Bhikabhai Patel. Under the charismatic leadership of engineer Sri Bhikubhai Patel Sir, Chairman, CBM, Charutar Vidya Mandal has established CBM University in Anand. GJPISR is an integral component of CBM since 2006 with the capacity of 100 UG seats. Panchakarma department of the GJPISR is a well-equipped unit offering various Panchakarma therapies to the patients with devotion. With this brief institutional introduction, let us move to our today's discussion. Our acharyas have very wisely made use of the Bahirmukha Srotas and designed Panchakarma therapies for the maintenance as well as attainment of health. Basti is one of the key Panchakarma therapies useful in all age groups and almost all conditions with the Yukti Purvaka selection of drugs. Our today's renowned speaker has a huge expertise on the utility of Madhutolika Basti. Madhutolik Basti is a type of Mridu Niruha Basti having vast usefulness in various disorders. I now request Dr. Gayatri Gandhe Madam, Professor and HOD, Panchakarma, to introduce our today's speaker, Dr. Nitin Vise sir. Yes, Madam. Good afternoon, everyone. Thank you, Kundan sir. I'm super happy today to introduce our today's guest speaker, Dr. Nitin Bise. I'll give you his introduction through a brief PPT. Dr. Nitin Bise is a thorough clinician as far as application of knowledge of Ayurvedic Siddhanta is concerned, and he is an amazing academician when it comes to explain the theory behind applying those Siddhanta in logical manner. Dr. Nitin has completed his graduation from Ayurved College, Akurdi, Pune in 1997 under the expert guidance of Vaidya Milinda Kulkarni, Vaidya Trilok Dhopeshwarkar, Dr. Raghini Patil, etc. He accomplished post-graduation in Kaya Chikitsa under the proficient mentorship of Professor Dr. Gurdeep Singh Sir at the prestigious IPJT and RA Jamnagar in the year 2000. He is a full-fledged Ayurveda consultant for about 20 years, running Dr. Bise Ayurvedic Clinic successfully at Pune along with his wife, Dr. Dipali Bise. While practicing, he has visited many European countries like Spain, Germany,
then Italy and Switzerland due to his expertise and for the propagation of Ayurveda. Dr. Bises has always strived hard for wide acceptance of Ayurveda by offering medicines in contemporary form. Their efforts have led them to set up Ojha the Natural Wellness Private Limited, under which a range of products like herbal teas for skin, obesity, hydration, nutrition, etc. are made available. They have made these products available in fun to form. These products are accessible through online shopping at sites like Amazon. Dr. Nitin is also involved in one commendable activity of Trimarma Ayurveda care, under which special training is provided to the graduates of Ayurveda, which instills a sense of confidence in them for successful practice of Ayurveda. With this brief introduction, I hand over the session to today's guest speaker, Dr. Nitin Desai, for his expert talk. We are eager to hear from you, Dr. Nitin. One request I would like to make to all the participants, if after watching this or if you have any queries regarding Madhu Tailika Basti, then please put up into the YouTube chat box, and so we will communicate after the session regarding these queries with Dr. Nitin. Thank you. Over to you, Dr. Nitin. नमस्ते अर्जुन। रागादिरोगान् सततानुशतान् अशेषकाय प्रस्तान् शेषान् औत्सुक्यमोहाततिदान् जङ्घान् यो पूर्ववैद्याय नमस्तु तस्मै। Can you hear me? Yes, sir. We are able to hear you. Okay. So today we are going to see the Madhu Tailik Basti. For the convenience of everybody, I would like to give this all session in a Hindi language that will be easy to understand by everybody. If you have any query, you can ask me in English also, in Hindi also. But for the convenience of everybody, I will talk in Hindi. That will be beneficial for everyone. Okay? तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं माधु तैलिक बस्ती, जो कि पहले बार बताया गया था उत्तर तंत्र में चरक के 12वें अध्याय में उत्तर सिद्धि में। तो उत्तर सिद्धि क्या है, तो उत्तर बस्ती करके वहां पे वर्णन आया है। उत्तर मतलब श्रेष्ठ। तो अब श्रेष्ठ जो है वो सारे ही हमारे हाथ के बाहर होते हैं ऐसे हमें लगता है, लेकिन अब जैसे जैसे आप ये सेशंस देखते जाएंगे आपको लगेगा सबसे ज़्यादा तो यही करना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो देन मैं फिर एक बार वापस समझा दूंगा। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ माधु तैलिक बस्ती। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुश्रुत का कोट है, नृपाना नाम तत्समाना नाम, मतलब किसको ये देना चाहिए। तो जनरली यहाँ पे जो दिया है कि ये सारे नृप मतलब जो किंग लाइक पर्सन है या किंग है उनको ये देना चाहिए, और जो सुकुमार है, जो स्त्री है, जो मतलब खुद से कुछ कर नहीं पाते ऐसे शिशु और स्थविर मतलब वृद्ध है, इन सबको देना चाहिए। अगर हम ठीक से देखें आज के परिप्रेक्ष्य में, तो मान लीजिए जिसके पास कार है या घर है तो वो एक अच्छा खासे घर का है, तो वो इसके लिए पर्याप्त है कि वो उसको माधु तैलिक बस्ती दिया जा सकता है। फिर सारे स्त्री है, सुकुमार है, बाल है और वृद्ध है, मतलब ऐसा देखा जाए तो मध्यम वर्ग और उसके ऊपर और सारे जो स्त्री और पुरुष है उनको हम माधु तैलिक बस्ती दे सकते हैं। अब ये क्यों देना चाहिए इसका भी वर्णन दिया है कि ये दोष निर्हरण करता है, बलवर्ण करता है। जैसे हम कहते हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ इसकी कार्य क्षमता है, तो हम पहले इसको देखते हैं कि ये आतुर में दोषों को निकालने के लिए काम आता है, और जब हम देखते हैं कि दोष निर्हरण हो जाता है और व्यक्ति
स्वस्थ होने के लिए जाता है और स्वस्थ हो जाता है, तब उसको बलवर्णादि करने के लिए हम माधु तैलिक बस्ती करते हैं। और इस माधु तैलिक को किसे भी दिया जा सकता है। और कैसे दे सकते हैं? तो यान स्त्री भोज्य पानेषु नियमाशा अत्र न उच्यते। मतलब यहाँ कोई नियम ही नहीं है। आप प्रवास कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, या आपको बहुत जल्दी है, आप रात भर काम कर रहे हैं, आप आईटी में हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कहीं ऐसा जॉब करते हैं जिसमें आपको वक्त निकालना बहुत ही दुष्कर है, या कोई स्त्री है जिसको काम दिन भर होता है और उसको बच्चे भी संभालने हैं, सब कुछ करना है, और वो कुछ वक्त निकाल पाती है खुद के लिए, तो उसके लिए भी ये उपयोगी है। स्त्री भोज्य मतलब यहाँ पे मैथुन का भी कोई ये प्रावधान नहीं है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अलाउड है कि आप मैथुन भी कर सकते हैं। तो वो भी यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और खान पान का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बिना खा के आओ, खा के नहीं आओ, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो नियम ही नहीं बताए गए हैं, इसलिए इसको और भी ज्यादा हम महत्व देंगे, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा है कि हमको वक्त नहीं मिलता है, और वक्त अगर मिल जाता है तो हम माधु तैलिक बस्ती कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक है। और लेकिन इसके विपरीत है कि बाकी बस्तियों से ज्यादा इसका फल विपुल है, बहुत ज्यादा मात्रा में इसके फल मिलते हैं। और व्यापदाम च असंभव बोल रहे हैं वो, मतलब व्यापद हो ही नहीं सकते। तो गलती से, हमारी गलती से या फिर रुग्ण की गलती से अगर कुछ प्रमाद हो जाता है तो वो निग्लिजिबल है, लेकिन खुद बस्ती कुछ व्यापद नहीं करता है, और इसलिए इसको श्रेष्ठ गणति में लिया गया है। और योजस्तैव सुखेनैव निरूहश्च निरूपक्रमम इच्छता यदेति तदेव वर्षम प्रयुक्त में विपश्चिता। इसको सुख से लिया जा सकता है, और इसमें जिसको भी इसकी इच्छा हो उसको हम ये दे सकते हैं। तो इसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसको देना है किसको नहीं देना है। आतुर को भी दे सकते हैं और स्वस्थ व्यक्ति को भी दे सकते हैं। इसमें काल का कोई बंधन नहीं है, और किसी भी बात का हम इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं करते हैं। और अब हम जाते जाते देखेंगे कि इसको हम कैसे फलस्वरूप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो अब मैं इसका कुछ गुण वर्णन पहले बता देता हूं। अब इसमें क्या है कि ये कहते हैं कि बस्ती तो अच्छा ही है, लेकिन बस्ती शुक्र दोष में सबसे अच्छा है। प्रशस्तः शुक्र दोषेषु बस्ती कर्म विशेषतः, मतलब हम कुछ भी करें तो उससे भी अच्छा बस्ती करें। और शुक्र दोष है तो बस्ती कर्म ही लेना चाहिए, कोई भी बस्ती। हाँ, इसमें अभी माधु तैलिक का कोई उल्लेख अभी तक नहीं है। माधु तैलिक का इससे भी आगे है कि वो उससे भी ज्यादा काम करता है, लेकिन यहाँ पे हम सामान्य बस्ती का वर्णन करेंगे तो भी वो बताता है कि चरक चिकित्सा 30वें अध्याय, तो वो आपको पता है कि योनि व्यापद है, और वहां पे भी वो बताता है प्रशस्ता शुक्र दोषेषु बस्ती कर्म विशेषता। तो जो भी हम इस यहाँ पे देख रहे हैं, तो शुक्र दोष जो है उनमें, मतलब शुक्र व स्रोतस पे काम करने के लिए बस्ती सबसे अच्छा है। और मैं आगे जाके कहता हूँ कि माधु तैलिक उससे भी अच्छा है। तो और वात अगर है और शुक्र का वह स्रोतस है तो आप माधु तैलिक के लिए जाइए। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि माधु तैलिक ये नाम क्यों पड़ा। तो सीधी सी बात है, मधु और तेल, यानी कि मध और तेल, इनका अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग जो है वो इसको माधु तैलिक नाम देने के लिए पर्याप्त है। ये निरूह बस्ती का एक प्रकार है जो चरक सुश्रुत ने बताया है। और अगर हम इसको चरक में देखेंगे तो ये बोलता है कि यह उत्तर मतलब बेस्ट बस्ती है। अब सुश्रुत, वाग्भट, भेल, शारंगधर, वंगसेन, और आप देखेंगे कि अष्टांग हृदय, इन सब में, अष्टांग संग्रह, इन सब में माधु तैलिक बस्ती का वर्णन है। तो इसका मतलब यह है कि ये सभी आचार्यों द्वारा प्रमाणित है
कि ये सबसे अच्छा है, ये बेस्ट है और इसको लेना चाहिए। और ये जो नृपो वगैरह है, ये कैसे हमेशा युद्ध करके एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, हॉर्स राइडिंग करते थे, रथ पे जाते थे और हमेशा बिजी रहते थे। वैसे ही आजकल के इसमें हम देखेंगे कि जो हमेशा काम में व्यग्र होते हैं, यान से जाते हैं, मतलब टू व्हीलर या फोर व्हीलर या ट्रेन या एरोप्लेन से जाते हैं, तो इनके लिए भी ये अच्छा है कि प्रवास में भी इसको लिया जा सकता है। तो इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और ये सारे इनके द्वारा ये है। यहाँ पे मैंने शारंगधर कोट किया है और वहां पे मैंने आडमल्लो को भी कोट किया, क्योंकि आडमल्लो ने इसको बहुत अच्छी तरीके से और ज्यादा एक्सप्लेन किया है। तो आडमल्लो ये शारंगधर का टीकाकार है, जो माधुतैलिक बस्ती पे और भी ज्यादा प्रकाश डालता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसकी स्पेशलिटी देख लीजिए। स्पेशलिटी है ये मृदु निरोह है। अब ये मृदु निरोह क्या होता है? तो नॉर्मली जो बस्ती है हम जो देते हैं वो तीक्ष्णता होती है उसमें, मतलब वो शुद्धता करता है लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में करता है। तो आपको पता होगा कि हमको शोधन के बाद फिर अनुवासन देना पड़ता है, निरोह देने के बाद अनुवासन देना पड़ता है, क्योंकि जो निरोह से उत्पन्न हुए या दोषों को ये किया जाता है, चलित किया जाता है, वात को बढ़ाया जाता है, उसको कम करने के लिए अनुवासन दिया जाता है जो उसको कम करेगा। तो मतलब निरोह से भी वात वृद्धि हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि मधु और तेल को इतने पर्याप्त मात्रा में यूज किया जाता है कि वो जब निरोह हो तभी ही उसका वात का जो वृद्धि होना है या कफ का क्षय होना है या पित्त का अति मात्रा में निकल जाना है, इनको वो रोक लेता है और उसको इतना बैलेंसली मेंटेन करता है, लेकिन निरोह होता है इससे, इसलिए इसको मृदु निरोह कहते हैं। अब मृदु निरोह का हमें और एक अच्छा सा रेफरेंस मिलता है जो अष्टांग हृदयकार ने बताया है। अष्टांग हृदयकार वात की चिकित्सा में कहते हैं, वात व्याधि की चिकित्सा में, कि स्नेहम स्वेदम संशोधयेत मृदु, मतलब मृदु संशोधन देना चाहिए। अब यहाँ पे निरोह अगर हमको देना है और केवल वातिक है तो वो उसको मृदु निरोह से हमको काम करना पड़ेगा। और वो मृदु निरोह कौन हो सकता है? तो माधुतैलिक बस्ती हो सकता है। मतलब वात की चिकित्सा क्या है? तो मृदु निरोह मतलब माधुतैलिक हो सकती है एप्रोप्रिएटली, और अगर नहीं है तो यू कैन गो फॉर जो हमारे लगातार वो यूज करने वाले बस्ती है, उनको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन दिस इज द वेरी बेस्ट बस्ती इन द फॉर्म ऑफ मृदु निरोह, और इसको हम देंगे तो व्यापद होने का संभावना ही कम है, मतलब नहीं हो सकते। और जो ये है, ये बोलते हैं कि शोधन तो करता ही है और उसके अनटोवर्ड्स विसिएशन है जो बाकी वात दोष का, वो उसको पैसिफाई कर लेता है, मतलब उसको बढ़ाता नहीं है, सिर्फ जितनी पर्याप्त मात्रा में शोधन होना चाहिए उतना करता है। तो ये बहुत ही बढ़िया इसकी स्पेशलिटी है, इसमें कोई भी व्यापद होने की संभावना नहीं है। हम आगे और देखेंगे इसका। नेक्स्ट। हाँ, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि और क्या रीजन है कि हम इसको यूज करें। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें बहुत बड़ी मात्रा में मध का यूज होता है, जो कि एक्सेलेंट योगवाही है। योगवाही का मतलब होता है कि बाकी जो भी उसमें आप मिक्स करो उसके योगों को वो ले जाता है। अगर आप उसमें वृक्ष योग डालते हैं तो वो वाजीकरण हो जाएगा, उसमें आप वातशामक योग डालते हैं तो वो वातग्न हो जाएगा, उसमें आप कफग्न डालते हैं तो कफग्न हो जाएगा, आप उसमें प्रमेहग्न डालोगे तो प्रमेहग्न हो जाएगा, उसमें आप कोई भी व्याधि का कंटेंट डालोगे तो उस प्रकार से वो उन योगों को लेके जाएगा। तो ये जो है मध, वो बहुत ही बड़ी मात्रा में होने की वजह से इसका योगवाहित्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ये वृक्ष भी है क्योंकि मध को स्वतः ही वृक्ष कहा गया है, जो मध ज्यादा पोटेंट होता है, मोर होता है, और ये शुक्रोपचय करता है। तो शुक्र का उपचय करना मतलब शुक्र को एक जगह
पे और ज्यादा जमा करना, और शरीर में जो सार्वदेहिक शुक्र है उसको मात्रा में बढ़ाना, ये सारे काम जो है वो इसमें होते हैं। और आप सबको पता है कि जब अगर शुक्र की अच्छी तरह उपचय होगा, अब यहाँ पे वृद्धि नहीं होती है, यहाँ पे उपचय होता है। उपचय अगर अच्छा होगा तो ओज की निर्मित ज्यादा होगी, और वृद्धि और उपचय में फर्क है। उपचय ये पर्याप्त मात्रा में अच्छी क्वालिटी का शुक्र होता है, और जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो वो विकृत मात्रा में अनुपयोगी और उसमें से व्याधि हो जनित कुछ कर्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उपचय की। तो शुक्रोपचय करता है, एनहांस करता है क्वालिटी और क्वांटिटी शुक्र की। तो यहाँ पे हम माधु तैलिक में जो यूज है अति मात्रा में मध, उसका वर्णन देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब उसके अतिरिक्त मात्रा में हम तिल तेल भी यूज करते हैं, तो उसका क्या है? तो ये भी एक तरह का योगवाहित्व है इसमें, और ये वातहर है श्रेष्ठ। हमने आग्रह संग्रह में देखा है, वाग्भट ने भी, चरक ने भी इसको वर्णन किया है, और सारे ग्रंथकार इसका वर्णन करते हैं कि अगर वात है तो तिल तेल सबसे अच्छा है। और ये क्या करता है, जो अंतर आंत्र है, बृहदांत्र, उसको एक तरह से लुब्रिकेशन करता है, जिससे कि बहुत ज्यादा मात्रा में अगर शोधन हो जाए तो भी आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन की अंतस त्वचा है उसको कुछ भी प्रकार की इंजरी नहीं होती है, और यही इसकी खासियत भी है। तो इस वजह से भी इसको हम ज्यादा महत्व देते हैं। अब यहाँ पे हम जो वर्णन कर रहे हैं वो कोकिलाक्षादि क्वाथ का है, जो मैं आपको बताऊंगा कंटेंट। एक बार यहीं पे भी बता देता हूँ। कोकिलाश्व, अश्वगंधा, आत्मगुप्ता, शतावरी और गोक्षुर, ये 5 कंटेंट होते हैं। ये कोकिलाक्षादि द्रव्य है। इनको अगर आप यूज करते हैं तो वो वृक्ष और वातहर है। इसी को अगर मूल सुश्रुत में आप अगर देखेंगे, सुश्रुत संहिता में, तो वहां पे एरेंडामूल का यूज है, और एरेंडामूल भी वृक्ष वातहर है। आप अगर देखेंगे अगर में, तो एरेंडामूलम वृक्ष वातहरा नाम दिया है। मतलब ये कि वृक्ष वातहर अगर द्रव्य हम यूज करते हैं माधु तैलिक में, तो वो और भी अच्छा काम करते हैं। तो इसी हिसाब से कोकिलाक्षादि को हमने यूज किया कि जो वृक्ष वातहर है। और अगर नहीं है आपके पास कोकिलाक्षादि, तो आप एरेंडामूल भी यूज कर सकते हैं, या फिर व्याधि के हिसाब से भी आप यूज कर सकते हैं। तो आगे जाते हैं। अब हम इसको देखें थोड़ा अतिरिक्त इसमें कि ये माधु तैलिक हम देख रहे हैं, लेकिन भट्ट ने एक बहुत ही अच्छी संकल्पना दी है। वो कहता है कि ये जो बाकी के जो युक्त रथ है, यापन, दोष और सिद्ध, ये तो इसके पर्याय ही है, माधु तैलिक के ही पर्याय है। यू कैन कॉल देम एज अ माधु तैलिक बस्ती ऑल्सो, क्योंकि वो करते भी वही काम है और उनमें भी वही बेसिक प्रिंसिपल है जो यहाँ पे। तो अगर हम इनको मान लेते हैं कि ये यापन, युक्तरथ, दोषहर, सिद्ध, ये से पर्याय है, तो हमें ये भी मान लेना चाहिए कि ये सारे ही यही काम करेंगे और श्रेष्ठतम लेवल पे करेंगे। और अगर इसको अलग तरीके से देखेंगे तो माधु तैलिक ये सारे काम कर लेता है। तो माधु तैलिक युक्त रथ में भी हम यूज कर सकते हैं, या उसको यापन में भी यूज कर सकते हैं, दोषहर में भी यूज कर सकते हैं, सिद्ध में भी यूज करते हैं। अब उसका क्या है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब पहले हम यापन देखेंगे। तो यापन क्या है? तो यापन जो है इसमें एक तरह के मल्टीपल एक्शंस को यहाँ पे दिखाया दिया है, जैसे धारण, रोग शमनम, यात्राकरम, या फिर अवस्थापयति, या फिर पोषणम। अब इसके भी हम थोड़ा सा अर्थ समझ लेंगे। धारण, यापन में धारण क्या करता है? तो मेंटेन करता है। तो जो भी हमारे इक्विलिब्रियम है धातु का, दोषों का, मल का, उसको मेंटेन करने का काम यापन बस्ती करता है, जो पर्याय ऑफ माधु तैलिक है। मतलब माधु तैलिक यही काम करता है। रोग शमनम मतलब ये क्यूरेटिव है। अगर कोई डिसीज्ड पेशेंट आपके पास आता है और आप उसको माधु तैलिक देते हैं तो वो ठीक हो सकता है। यात्रा कर है,
मतलब ये सपोर्टिव ऑफ लाइफ है। मतलब कि अगर आप देखेंगे कि एक किसी के पास लाइफ कम हो गई है, अगर वो कम दिन जीने वाला है, तो हम यहाँ पे माधुतैलिक बस्ती से उसके लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये यात्रा कर करके उसका अनुबंध दिया हुआ है। फिर अवस्थापनीय, तो ये मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, मैंने जो पहले कहा धारणम, धारणम में धातु का ज्यादा है, यहाँ पे दोष और धातु मल तीनों का है। और फिर पोषणम, अगर किसी को न्यूट्रिशन देना है, किसी का पोषण करना है, धातु पोषण करना है, तो उसमें भी हम यापन बस्ती और जिस जो कि माधुतैलिक बस्ती है उसको दे सकते हैं। माधुतैलिक दे के आप ये सारे कर्म अपेक्षित कर सकते हैं। तो यापन उसका पर्याय है। आगे युक्त रथ जो है, तो युक्त रथ में जो है कि मैंने जैसे कहा कि पहले के राजा महाराजा होते थे वो रथ से या घोड़े से यहाँ से वहां जाते थे। आजकल जो राजा जैसे लोग हैं या फिर बिजनेसमैन हैं या फिर हम कहेंगे कि बहुत ही काम करने वाले लोग हैं, तो वो हमेशा प्रवास करते हैं। और अगर प्रवास में भी अगर हम इसको दे देंगे तो ये भी फलश्रुद्ध है। मतलब मान लो अभी ट्रेन शुरू हो गई है जिसमें हम पंचकर्म कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमको पंचकर्म करना है, बस्ती करना है, तो कल्पना कीजिए कि हमने सारे यात्रीगणों को जो स्वस्थ है, आतुर है, उनको माधुतैलिक बस्ती दे दिया। तो आप देख लेंगे कि ये सबसे अच्छा है। मतलब इसमें कोई व्यापादी भी होने वाला नहीं है, और वो दोषों को भी निर्वहन करेगा, इक्विलिब्रियम भी करेगा, और उनको स्वस्थता भी देगा। तो ड्यूरिंग द जर्नी भी हम इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम युक्त रथ बताया है। दोषहर, दोषहर तो नाम से ही मिल जाता है, ये मृदु निरोह है, तो ये दोषों को निकाल देता है। और स्पेसिफिकली वात और कफ। और फिर अगर तीक्ष्ण निरोह से जैसे वात वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पे वो नहीं होती है, और हमारा काम हो जाता है, वात को वो मेंटेन करता है। सिद्ध जो है, तो वो डिसीज कंडीशन में भी और हेल्दी कंडीशन, मतलब आतुर और अनातुर दोनों इसमें ये इसकी कार्यता सिद्ध हो जाती है, इसलिए इसको सिद्ध बस्ती भी कहा जाए। अब इसको हम और अच्छी तरह से देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये पूरे बॉडी को ये हेल्पफुल है, और ये पूरे वक्त पे इसको काम कर सकता है, होल बॉडी फॉर ऑल टाइम। और ये प्लेंटी ऑफ रिजल्ट्स देता है, इसलिए इसको बहुफलो बताया गया है। तो कुछ बिना तकलीफ के इसके बाद ज्यादा ये फायदे हैं। और ये नरिशमेंट करके और विदाउट कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके हमारे शरीर को स्वस्थ करता है, इसलिए इसको निर्व्यापक भी कहा गया है। नेक्स्ट, अब हम किसे दे सकते हैं, इंडिकेशंस क्या है? तो पहले भी कहा था कि ये स्वस्थ आतुर में दिया जा सकता है, और जिसको वृक्ष इफेक्ट चाहिए उनको दिया जा सकता है। लेकिन मैं आपको कहूंगा जिसको रसायन चाहिए उनको भी आप ये दे सकते हैं। तो रसायन, वाजीकरण, स्वस्थ, आतुर, ये सारे कर्मों के लिए हम माधुतैलिक बस्ती को चूज कर सकते हैं। और इसमें अगर हम देखेंगे कि कुछ और डिसीजेस है क्या, तो इसमें आप देखेंगे कि कृमि कोष्ठ, उदावर्त, गुल्म, अर्श, ब्रद्न, प्लीहा रोग, प्रमेह, मेदो रोग, आंत्रवृद्धि, ऐसे बहुत सारे व्याधियों में इसको यूज किया जा सकता है। और मैंने रेफरेंस दिया है, चरक का है, अष्टांग संग्रह का है, अष्टांग हृदय का है, इन्होंने ये सारे डिसीजेस मेंशन किए हैं। कृमि से कोष्ठ भरा हुआ है, उदावर्त है, ऊपर की तरफ आ रहा है, गुल्म है, शूल हो रहा है, अर्श है, जहाँ आपको पता होगा कि अर्श में निरूह ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब अनार्ह है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि अर्श में इसको देने के लिए कहा है। प्रमेह में भी अनार्ह है, यहाँ पे देने के लिए कहा है। प्लीहा रोग में इसको यूज कर सकते हैं। मेदो रोग में, हालांकि ये ब्रूहण करता है लेकिन मेद को कम करता है, ये बहुत ही पेक्युलरिटी है इसकी। और आंत्र वृद्धि में भी इसका काम होता है। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छा है।
मतलब एक ही इसमें मल्टीपल फंक्शंस हमारे हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे व्याधियों में इसका मैं आपको बताऊंगा, हमने प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ यूज किया, आगे देखेंगे। और दो जिनको निरूह करना है लेकिन कुछ तकलीफ नहीं चाहिए, प्लेजेंट भी चाहिए, उस एक तरह का वो जो अनटॉवर्ड्स या अनवांटेड रिजल्ट्स भी नहीं चाहिए, और सुखद वो करना है। आपको पता है अगर आपके पास वही लोग आ रहे हैं जिनको कोई तकलीफ ना हो लेकिन सब अच्छा हो, ऐसा अगर चाहिए तो आप बिंदास निरूह बस्ती में माधुतैलिक बस्ती यूज कर सकते हैं, जिससे कोई तकलीफ भी नहीं होगी और रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आएगा और फास्ट आएंगे। तो इसलिए ऐसे इसमें अगर कोई बोल रहा है कि मुझे काम है, मुझे टाइम नहीं है, या एक आधी स्त्री है और वो बोल रही है कि घर बहुत सारा काम है, ऑफिस भी है, घर भी है और मुझे वक्त नहीं देना पड़ रहा, या फिर जैसे टीचर्स है, पढ़ा रहे भी है और का घर में भी उनके काम होते हैं, तो बहुत सारे कामों में हमें वक्त निकालना पड़ता है कि कोई एक अच्छा सा कर्म कर ले। और यहाँ पे हमको कोई प्रिपरेशन नहीं, पोस्ट प्रोसीजर कुछ ये नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, और उसका आगे हम देखेंगे। तो उसमें हम किसी भी इसमें किसी भी टाइम में किसी को भी ये दे सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, रिटेंशन ऑफ माधुतेलिबस। अब ये मृदु निरोध है, हमने एक बार दे दिया तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, ये निकलने में थोड़ा टाइम लेता है। तो यही इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ वाली प्रॉब्लम है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा समझ के लेंगे कि ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे माधुतैलिक बस्ती जो है कि ये मृदु निरोध है, तो ये थोड़ा हमारा जो 48 मिनट जो है एक मुहूर्त, उससे ज्यादा टाइम ले सकता है क्या? हाँ, ले सकता है। और अगर ये ऐसा ही रह गया तो क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे काश्यप का एक कोट है जो मैं आपको बताता हूँ। वो बोलता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मृदु निरूह है। अगर रह भी गया थोड़ा सा ज्यादा टाइम तो आप इसकी चिंता मत करो। अब ये काश्यप का वर्णन है, मेरा नहीं है। तो काश्यप बोलता है कि ये मृदु निरूह है, ये श्रेष्ठ है, इसकी कोई चिंता मत करो, रह गया तो रह गया, थोड़ी देर बाद निकल जाएगा, दूसरे दिन निकल जाएगा। तो ऐसा करते हैं। लेकिन बाकी लोगों ने बोला नहीं, इसको प्रिकॉशनरी लेना है, इतना भी नहीं छोड़ देना है। तो उनके हिसाब से हम क्या देखते हैं, तो अगर ऐसा हो जाता है तो आपको तीक्ष्ण निरूह देना है। तीक्ष्ण निरूह में गोमूत्र वगैरह मिलाकर हम एक निरूह दे सकते हैं, वो तुरंत बाहर आ जाता है अगर ज्यादा टाइम हो गया है। तो ये भी हम कर सकते हैं गोमूत्र का यूज करके। तो ये तीक्ष्ण बस्ती देखिए, चरक और अष्टांग संग्रहकार बोलते हैं कि इसको निकाल दो, ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक है, और मैं भी इसी से सहमत हूँ कि अगर रुक जाता है और आपको लगता है कि ये इससे ज्यादा देर लेगा, तो 48 मिनट के बाद अगर नहीं निकलता है तो या तो उसको बिठा दीजिए उत्कट आसन में, जैसे मल प्रवृत्ति के लिए इंडियन सिस्टम में बैठा जाता है वैसे। अगर उसके बाद भी नहीं निकलता है तो तीक्ष्ण निरोध दे दीजिए, वो तुरंत निकल जाएगा। तो कोई उसमें घबराने की बात नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और जब निकलता है तो पेशेंट को और भी ज़्यादा अच्छा लग जाता है, इसलिए उसको देना चाहिए। और लेकिन इसमें कोई घबराने की कोई चिंता नहीं है। जैसे काश्यप कहता है कि थोड़ा देर रुके तो भी कोई चल जाता है। तो लेकिन उसको रुका दीजिए, मल प्रवृत्ति होने दीजिए, फिर उसको घर जाने दीजिए, और वो हो जाता है। बहुत ज़्यादा कभी इतना प्रॉब्लमेटिक मेरे चिकित्सा में नहीं दिखाई दिया। सो डोंट वरी। नेक्स्ट। कॉम्प्लिकेशंस जो है वो भी देख लेते हैं। अगर रुक गया तो क्या होगा, तो अगर ये रुक जाता है तो ये कोई भी अनकंफर्ट, डिस्ट्रेस या डिस्कम्फर्ट नहीं करता है, क्योंकि ये माइल्ड है। तो ये अपने आप ही अपना काम कर लेगा। लेकिन उसके ज्यादा अगर हो जाता है, मान लो कि पूरा दिन निकला नहीं है, बहुत देर तक रुका हुआ है, तो फिर ये तकलीफ दे सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे किसी और तरह की बात करें, तो ये कोई अभी के लिए जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि तुरंत बाहर निकलने वाला प्रॉब्लमेटिक है या नहीं देखा था, तो वो तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उसको हम निकाल दें।
अब ये एक्सेस यूज क्या है? एक्सेस यूज ये है कि इसका ग्रंथ में मैक्सिमम टाइम दिया है 10 दिन। तो आप 10 दिन से ज्यादा अगर उसको यूज करते हैं तो आपको कुछ तकलीफें होगी। ये इस तरह का एक्सेस है। तो वो वाला एक्सेस नहीं है कि उसको ज्यादा देर बॉडी में रहा या फिर उसकी मात्रा में ज्यादा हुआ, वो वाला नहीं है। अगर हम इसको, मान लीजिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फीलिंग अच्छी आ रही है, तो पेशेंट आपके पास हमेशा आता जाएगा। लेकिन उसको 10 दिन के बाद आपको बताना है कि अभी रुक जाना चाहिए। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अगर हमको मान लीजिए काला बस्ती देना है 30 दिन का, तो 10 दिन, 7 दिन का गैप, 10 दिन, 7 दिन का गैप, फिर 10 दिन, ऐसा दे सकते हैं। या फिर 7 दिन, 10 दिन का गैप, 7 दिन, 10 दिन का गैप, फिर 7 दिन, ऐसा भी दे सकते हैं। तो वो 21 डेज हो जाएगा। या फिर 7 दिन दिया, 10 दिन दिया तो भी चलेगा। अभी ऐसा कोई उसका रूल नहीं है कि कितना देना चाहिए कम से कम, कितना ज्यादा से ज्यादा। हाँ, इससे ज्यादा नहीं देना चाहिए ऐसा वर्णन है। वो अच्छा लगे तो भी, तो क्या करेगा वो? तो वो पांडु कर सकता है, शूल कर सकता है, और जो अर्श की चिकित्सा है वो अर्श भी कर सकता है, परिकर्तिका कर सकता है, अतिसार कर सकता है, शोफ कर सकता है, या ज्वर और अग्निनाश भी कर सकता है। हालांकि ये ब्रूहण ब्रूहण इतना ज्यादा होते जाता है कि फिर वो ये जो अपतर्पण की जगह पे संतर्पण ज्यादा हो जाता है, और संतर्पण जन्य व्याधियों को ये करने चालू कर देता है। इसलिए फिर चरक ने कहा है, या अष्टांग संग्रह ने कहा है कि इसको 10 दिनों के ज्यादा नहीं लेना चाहिए, कंटिन्यू। हाँ, फिर आप इसको गैप दे के कर सकते हैं। तो ये अच्छा है, लेकिन अच्छा है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जो ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ का जो ग्रंथोक्त वर्णन है ये है। और मैंने भी देखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा देने से ये इसका काम जो है वो पहले ही हो चुका होता है। अगर आपको देना है तो गैप दीजिए और फिर चालू कर दीजिए। और अति सेवनीय जन्य व्याधि हो सकते हैं इसमें। और अगर अगर ऐसे हो भी जाते हैं, मान लीजिए कि बहुत 10 दिनों के बाद दिए, या फिर ऐसा कर लीजिए कि उसको 7-8 दिनों में ही ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा हो गया है, और इसमें से अगर उस व्यक्ति के लिए वो अति मात्रा हो गई है, तो दीपनीय द्रव्यों का हम यूज कर सकते हैं। तो दीपनीय द्रव्यों में अरिष्ट, सिधु या क्षार, इनका यूज करेंगे तो ये रिवर्सिबल है, मतलब आपको कुछ डरने की बात नहीं है। तो ये भी यहाँ पे एक पर्याय दिया हुआ है कि एक्सेस तो नहीं यूज करना है, मतलब अति लॉन्गर ड्यूरेशन में। और अगर कुछ हो भी जाता है तो उसको हम दीपनीय गण से या दीपनीय द्रव्यों से उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट। हाँ, अगर पथ्य, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कोई पथ्य ही नहीं है इसको। यही सबसे इसकी खासियत है। आयुर्वेद में जो पथ्य 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 बोलते हैं ना, तो ये एक में है जिसमें कोई पथ्य ही नहीं है। मतलब कुछ बताया ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, और वो बोलते हैं कि कुछ करना ही नहीं है। देयर इज कोई परिहार काल नहीं है, कुछ पथ्य नहीं है। तो ये आप इसके लिए दे सकते हैं कि अगर कोई आपको बोले कि आयुर्वेद में बहुत ज्यादा पथ्य है, तो आप उसको सीधा सीधा बोल दीजिए नहीं नहीं कोई पथ्य नहीं है, ये आप माधुतैलिक ले लीजिए, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इसमें मैंने मेरी तरफ से कुछ जोड़ दिए है जो मेरे अनुभव में आए हैं। तो जैसे हम वाजीकरण कुछ यूज करते हैं, तो हम वाजीकरण के पथ्य बता सकते हैं। जैसे क्षीर दे दिया, या मांस रस दे दीजिए, या ओदन और क्षीर खाने के लिए बोला, तो ऐसे हम पथ्य एडवाइजेबल है अगर हम माधुतलिक बस्ती वृक्ष या वाजीकरण के लिए यूज करते हैं। तो यही एक स्पेसिफिक है, बाकी कोई पथ्य नहीं है। हाँ, आगे नेक्स्ट है। हाँ, लेकिन कुछ अपथ्य बताए हुए हैं, तो वो पथ्य अपथ्य में क्या फर्क है वो देख लीजिए। कि एक तो स्पेसिफिकली कुछ है नहीं, लेकिन वो बोलते हैं कि मतलब सुश्रुत तो बोलता है ट्रैवलिंग में भी करो, सेक्सुअल एक्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाइटरी रेजिम भी आप फॉलो नहीं करते तो भी चलेगा, क्योंकि है ही उनके लिए जो कि ये कुछ भी नहीं पालने वाले हैं, और आपके पास आएंगे और चिकित्सा आप मांग पूछेंगे, उनके लिए ही ये ज्यादा है। और किसी को करना भी है लेकिन नहीं हो पा रहा है। अगर कोई मान लो व्यक्ति है जिसको काम है दिन भर, और वो वक्त निकाल ही नहीं पा रहा है कि घर का खाना
ठीक से खाना, या फिर होटल का न खाना, या कंपनी में आजकल देते हैं तो कंपनी का न खाना, ऐसा नहीं कर सकता। या फिर रात में न जगना, अगर वो नाइट ड्यूटी ही कर रहा है तो फिर ट्रैवलिंग कर रहा है, तो लोगों के लिए ही माधु तेलिक बना है। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे कोई रिजिम है नहीं, आप इसको मतलब उनके ऊपर फोर्स मत कीजिए, फिर भी आपको ये रिजल्ट देगा। अब वो बोल रहे हैं इसमें कोई टाइमिंग का भी ये नहीं है, इशू है नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है नहीं मैं रात को 11 बजे आता हूँ, तो क्या 11 बजे दे ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल ले सकते हो। क्या मैं सुबह 6 बजे ले सकता हूँ? हाँ 6 बजे ले सकते हो। दोपहर के वक्त ले सकते हो? हाँ ले सकते हो। मैंने खाना खाया है, ठीक है ले सकते हो। नहीं खाया है, ठीक है ले सकते हो। सो देर इज नो पर्टिकुलर रेजिम और एनी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, कुछ भी इसमें नहीं है। ये आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, और यही इसकी खासियत भी है। तो आपके लिए ये तो एक हम कहेंगे कि सब वैद्यों के लिए एक गिफ्ट पैक है। तो माधु तेलिक बस्ती हमारे सारे प्रॉब्लम को हल कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें क्या बताया है कि माधु तेलिक बस्ती के पेशेंट जो है, तो जब भी उसको उसको रिक्वायर कब है वो देखना है और आपको देना है। ठीक है, मतलब मैंने आपको कहा कि रूपा और जो बिजनेसमैन है, राजा राजा के जैसे लोग, इनके लिए है। वो कोई सिक्योरिटी गार्ड है या कोई चीफ कमांडर ऑफिसर है, तो वो वक्त कैसे निकालेगा? तो वो बोलेगा मैं भाई इस वक्त पे फ्री हूँ, तो आप बोलेंगे हाँ चलो ठीक है उस वक्त पे दे देंगे, तो ये दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो चीजों का ख्याल उन्होंने बताया है, जो कि हमें पता होना चाहिए, सुश्रुत चिकित्सा में बताया है। वो बोलता है कि अजीर्ण हो, मतलब आपने किसी व्यक्ति ने खाया है और वो अजीर्ण हो चुका है, मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो आपको ये नहीं देना है, क्योंकि ये अग्नि पे काम करता है। तो पहले इसमें वो अग्नि को अच्छा भी करता है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि वो अग्नि को तकलीफ दे सकता है, क्योंकि अजीर्ण है, इसलिए फिर वो नहीं करना है। और एक ही उन्होंने बताया है कि दीवा स्वाप मत करो, मतलब ये लेने के बाद, बस्ती लेने के बाद दिन में नहीं सोना है। अब ये दो ही ऐसे चीजें हैं जिसको हमको ध्यान देना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमने जिनको ये चूज किया है वो दिन में सोने वाले नहीं है, इवन रात को भी सोएंगे कि नहीं पता नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमको ये करना है, चूज करना है, या फिर उनको ये बस्ती देना है। तो ये इसके स्पेशलिटी है। नेक्स्ट स्लाइड। अब एडवांटेज क्या है, हम दे रहे तो ये अयोग नहीं करता कभी भी, ना ही अति योग करता है। मतलब बस्ती दिया और उसको 20-25 बार लूज मोशन हुआ, नहीं ऐसा नहीं कभी होता। गुदभ्रंश होगा, नहीं ऐसा नहीं होता, ये होता ही नहीं है। इसलिए ना अति योग होता है ना अयोग होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बैलेंस बस्ती में रखा जाता है। इसमें प्रायरली कोई वमन विरेचन ऐसा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली आप बस्ती से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये लेखन भी करता है और ब्रूहण भी करता है। मैंने कहा ना, इसकी ये स्पेशलिटी ही है कि इसको अलग अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मेद रोग को भी नष्ट करेगा, प्रमेह को भी नष्ट करेगा, कृमि कोष्ठ को भी नष्ट करेगा। ये सारे ब्रूहण और इसको लेखन भी करेगा और ब्रूहण भी करेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए सबसे इसका इम्पोर्टेंट है। और ये डुअल फंक्शन करता है, निरोध भी करता है, अनुवासन भी करता है। तो हमारे लिए अलग अलग यूज करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही इसकी स्पेशलिटी है कि यहाँ पे अनुवासन की जरूरत नहीं होती। किसी भी ग्रंथकार ने इन बिटवीन निरूह में अनुवासन देने को नहीं कहा है, मतलब निरू अनुवासन करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपको बस्ती दिया, खत्म। मतलब 10 दिन दे रहे हैं तो आपको 10 दिन माधु तैलिक ही देना है। आप 7 दिन दे रहे हैं तो आपको 7 दिन माधु तैलिक देना है। आप 1 दिन दे रहे हैं तो आपको माधु तैलिक देना है। आप सुबह और शाम को दे रहे हैं, आपको माधु तैलिक ही देना है, कोई निरूह अनुवासन नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये सबसे स्पेशल है। आप एक ही दिन दीजिए, 10 दिन दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको देना माधु तैलिक ही है। कोई अनुवासन बस्ती इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट। ओके, अब इसके और भी स्पेशलिटी देखते हैं। ये सबसे लोअर डोज में दिया जा सकता है,
ठीक है, निरूह में सबसे लोअर डोज में दिया जा सकता है। और इसमें परिहार काल नहीं है, मतलब इतने दिन आपको संसर्जन क्रम करना है, ये करना है, पथ्य करना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं, घूमना फिरना नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं, आपको सब करना है। इसलिए इसमें कोई परिहार काल ही नहीं है, खाना सब कुछ खाना है। इट निरव्यापद बोला है उसे के, निरुपद्रव, मतलब उपद्रव ही नहीं करता है। कुछ और भी उपद्रव कर सकता है क्या? नहीं, ये करता ही नहीं है। और जब भी पेशेंट को रिक्वायर, अभी ये बहुत ही अच्छा है, डलन ने कोट किया है। डलन बोलता है कि हमें जब चाहिए तब हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं। जैसे वमन है, आपको सुबह बुलाना है, वसंत ऋतु है, ये है, सारा हमको देखना पड़ता है। विरेचन है, शरद ऋतु है, पैतृक अवस्था है, वो सारा देखनी पड़ती है। यहाँ पे आपको रुग्ण को पूछना है कि आपको कब चाहिए, तो व्हेनेवर पेशेंट डिजायर और रिक्वायर्ड यू कैन गिव। ये सबसे अच्छा है इसका, कोई आपको तकलीफ ही नहीं है, उसने चूज करना है और आपको देना है। बस वो मैंने जो कहा कि अजीर्ण नहीं होना चाहिए और उसने दिन में नहीं सोना चाहिए, इतना छोड़ दिया तो सारा हमारे हाथ में ही है। और ये स्वस्थ आतुर दोनों को है, कुछ भी बोल सकता है वो, बोलेगा मुझे बीमारी है तो भी चलेगा। हाँ, आजकल एक नया ही फैड चल रहा है, लोग बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ बस वो शुगर रहता है, मैं मेडिसिन ले लेता हूँ। तो उनको ये पता ही नहीं होता है कि भाई शुगर भी बीमारी होती है और वो भी ठीक करनी चाहिए। और हमारा ये माधुतैलिक बस्ती तो ऐसी कमाल की चीज है कि ये प्रमेह की भी चिकित्सा है, तो प्रमेह में भी हम इसको दे सकते हैं, कोई इसमें तकलीफ नहीं है। तो ये भी एडवाइजेबल ही है, तो वो आतुर और स्वस्थ में हम इसको दे सकते हैं। और यहाँ पे सेपरेट ये खुद ही रसायन और वाजीकरण करते हैं, मैंने आपको कहा, इसलिए इसको सेपरेट से रसायन देने की जरूरत नहीं। जैसे हमने कहा कि शोधन करते हैं फिर हम रसायन चालू करते हैं। देखिए आप जहाँ पे भी रसायन का टॉपिक है वहां पे आप देख लेंगे कि रसायन करना है तो आपको शोधन लेना चाहिए, आपने शोधन लिया है तो ही रसायन कर सकते हैं, ये आपको पता है। लेकिन ये एक ऐसा है जहाँ पे आपने चॉइस तो उसको किसी लिए भी किया होगा, स्वास्थ्य के लिए, आतुर के लिए, और आपको रसायन देना है क्या, तो ये रसायन खुद ही कर लेगा। तो ये रसायन चिकित्सा अपने आप ही करता है, अलग से इसको देने की जरूरत नहीं है। और हमने देखे हैं लोगों के स्किन चेंज होते हैं, लोगों के एज रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं, लोगों के चेहरे एकदम से जवान और अच्छे, मतलब उसको ग्लोइंग कह सकते हैं, जिसको हम रसायन विजिबल हो सकता है, इतना हम देख सकते हैं। तो इसमें सेपरेट रसायन करने की जरूरत नहीं है। और वाजीकरण द्रव्यों के साथ देंगे तो वाजीकर भी हो जाता है, ये खुद वाजीकर भी है, मतलब तो रसायन वाजीकरण अलग से करने की जरूरत नहीं, ये दोनों हो जाता है इसमें, सेपरेट नहीं देना है आपको। और ये माइल्ड बस्ती है तो इसको शोधन भी हो जाता है, और अगर कोई शुक्र दृष्टि है या वात कफज दृष्टि है तो हम इसको बिंदास दे सकते हैं, क्योंकि ये उसी पे ज्यादा अच्छा काम करता है। बस हमको उसमें कुछ औषधियाँ जो है वो उस हिसाब से मिलानी पड़ेगी और फिर ये काम करेगा। नेक्स्ट। हाँ, अब हम देखते हैं कि इसमें कंटेंट क्या है, क्या क्या इसमें मिलाया जाता है। तो इसमें पहले तो है मध, तो हनी या मध बोलते हैं। अब इसका लैटिन नेम आपको पता है, रस मधुर कषाय है। और गुण है वृक्ष लघु है और ये अनुष्ण है। विपाक इसका कटु है और ये त्रिदोषग्न है। तो आपको पता ही है कि ये सभी गुणों में श्रेष्ठ है। और मध हम अनुपान की तरह पे यूज करते हैं, यहाँ पे अनुपान ही मेन ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। और ये योगवाही भी है और ये खुद भी इसके गुणों को दर्शाता है। नेक्स्ट। अब इसके हम जो एक्शन है मध के वो अगर देखेंगे तो ये दीपन है, वर्ण्य है, शोधन करता है, रोपण करता है, वाजीकरण है, और ये पोषण भी करता है। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ ऐसा ही बताने के लिए ये किया है कि अगर आप इसमें कुछ मिलाओ ना मिलाओ और यही यूज करो तो भी हो जाता है, मतलब मध और तेल।
क्योंकि माधु तैलिक बस्ती जो है वो पर्टिकुलरली उत्तर स्थान में, चरक ने बताया उसमें दूसरा कुछ है ही नहीं, सिर्फ मध और तेल है। और यही इसकी खासियत है कि मधु तैलिक बस्ती वहां से चालू हो गया। सुश्रुत आदि लोगों ने इसमें कुछ द्रव्यों को मिला के इसकी पोटेंसी और बढ़ा दी और मात्रा उसकी कम कर दी। वो हमारे लिए ज्यादा आसान हो गया। लेकिन अगर हम चरक देखेंगे तो चरक में सिर्फ मद और तेल है, माधु तैलिक बस्ती बस। और फिर पर्याप्त मात्रा में देने से ये सारे गुण मिल जाते हैं। सो इट्स वेरी बेस्ट। तो मैं इसीलिए इसके एक्शन और यूजेस में जाता हूँ, क्योंकि ये खुद ही ये काम कर लेता है। ठीक है, तो ये सारे तो आपको पता है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मतलब वैद्य को मध के गुण बताना मतलब हंसी करने जैसा है। तो एवरीबडी नोज व्हाट इज हनी इज एक्चुअली। तो यहाँ पे सिर्फ वो योगवाही है, एज अ व्हीकल काम करता है, इसको समझ लीजिए। और ये माइक्रो चैनल्स तक जाता है, जिसको आगे हम देखेंगे कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। नेक्स्ट, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाता हूँ क्योंकि वो तो आपको कहीं पे भी मिलेंगे। वेल्थ ऑफ इंडिया करके एक अच्छा सा बुक है, जिसमें हमारे सारे इंडियन जो भी कुछ मिलता है उसका बहुत ही अच्छा वर्णन है। तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या है। तो ये आपको मिल जाएंगे। सिर्फ बताने की चीज़ ये है कि इसमें विटामिन D1 है, D2 है, विटामिन B6 है, और विटामिन सी है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे विटामिन भी इसमें मिल जाते हैं। और इसमें कुछ मिनरल्स भी हमको मिल जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, निकेल है। और सबसे अच्छा ये है कि इसमें ट्रेस अमाउंट में गोल्ड मिलता है। तो अ, जिन्होंने जामनगर में MD किया है उन सबको पता है कि वहाँ पे एक रिसर्च भी हुआ था ESN प्रसाद के अंदर, जहाँ पे सीमेन में, ह्यूमन सीमेंस में गोल्ड के ट्रेसेस मिले थे। तो वहाँ पे भी गोल्ड है। फिर उसमें स्वर्ण भस्म पे काम हुआ। और अगर आपको स्वर्ण भस्म नहीं चाहिए तो आप मध यूज कर सकती है, इसमें भी वही ट्रेस अमाउंट में सुवर्ण है। तो ये डायरेक्टली उसको जैसे समान है ना समान वृद्धि हो जाता है। तो ये वहाँ के गोल्ड को दे देता है, नरिश कर देता है। जो मैंने आपको पहले कहा था कि शुक्र उपचय होता है। तो यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड के ट्रेस अमाउंट आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब तिल तेल में, हाँ, तो तिल तेल का भी आपको मतलब पता है। ये तिल तेल है जो वो स्निग्ध है, वगैरह सेसम ऑयल हम जिसको बोलते हैं, मधुर कषाय है, गुरु स्निग्ध, ये भी उष्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है। और ये वात शामक है, श्रेष्ठ है, ये आपको पता है। नेक्स्ट, ठीक है। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस भी इसमें आपको पता है, कुछ उसमें बताने जैसा नहीं है। कल का द्रव्य में हाँ ठीक है। तो कल का द्रव्य में जो है, मैंने आपको कहा था कि ये बेसिक है। मतलब ये सारे माधु तैलिक में जमा होगा। तो कल का द्रव्य में मदन फल आएगा। ठीक है, हम अभी तक क्वाथ द्रव्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम कल का द्रव्य की बात कर रहे हैं। कल का द्रव्य में मदन फल आएगा। तो मदन फल जो है वो सभी को पता है कि ये वामक गण में भी है और आस्थापनीय गण में भी है। अब इसके बहुत सारे यूज है, लेकिन यहाँ पे उसके पर्टिकुलरली यूज है क्योंकि ये मृदुर है, सारा काम इन्हीं को करना है, कल्क द्रव्यों को। तो ये जो है वो कल्क द्रव्यों में मदन फल है। तो मदन फल जो है वो रस में मधुर है, तिक्त है, गुण में लघु रुक्ष है, और वीर्य में उष्ण है। विपाक इसका कटु है, और ये कफ शामक है। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। अब इसके आगे के ये देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। इसके यूजेस देखते हैं। आस्थापनीय है, अनुवासनीय है, वामक है, शोफहर है, वेदना स्थापन है। अब ये देखिए, ये अभ्यंतर जाएगा तो शोफहर है, ये बाह्यता रहेगा तो शोफकर है। इसको शल्यक वगैरह भी कहा गया है। तो ये बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। इसको बहुत ही प्रेज किया है। मतलब
चरक ने तो इसके कल्पस्थान में 133 योग बताया है। चरक का सबसे लाडला ड्रग है ये। और अभी आपको ये दिखेगा कि ये क्यों है, क्योंकि ये सब कुछ कर लेता है। तो ये एक तरह का सेडेटिव भी है, नर्वाइन काम भी कर देता है, नर्वस सिस्टम पे भी काम करता है। और इसका अगर रिमेटिक आर्थराइटिस पेन वगैरह है, इसमें भी इसको काम किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसका यूज होता है। और ये बहुत ही अलग तरीके का द्रव्य है, जो स्टिमुलेटर भी है और कार्मिनेटिव भी है। तो उसको काम डाउन भी करता है और बढ़ाता भी है। मैंने जैसे कहा, अभ्यंतर ये शोथहर है और बाह्यता ये शोथक कर है। अब उसको हम जब देखेंगे तो इसके बस्ती के एक्शन में तो इसका भी यूज आ जाएगा। नेक्स्ट, शतपुष्पा। शतपुष्पा वेरी कॉमनली आपको पता है, एंथमसोवा जो होता है, तो वो इसको इसके तिक्त कटुरस है, रुक्ष तीक्ष्ण है और उष्ण वीर्य है, कटु विपाक है, और ये वातग्न है। इसके केमिकल यूजेस भी देख लेते हैं। इसके एक्शन जो है ये अलग तरीके से काम करता है। ये कृमिघ्न है, अनुलोमन करता है, ये भी शोफहर है, दीपन है, पाचन है, वेदना स्थापन है। और ये जो है इसके सबसे अलग बात बताता हूँ कि ये भाव प्रकाश ने इसको कृमि शुक्रहर बताया है। तो ये कृमि शुक्रहर जो है ये बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप वाजीकरण में यूज कर रहे हो तो ये शुक्र को कम करता है। अब ये कम करता है, लेकिन उसी जगह पे आप देखेंगे कैयदेव ने इसको बोला है कि ये वृक्ष है। अब ये दोनों कैसे करेगा? तो मैंने जैसे कहा था कि शुक्र वृद्धि है अगर, तो वहां पे हम इसको शतपुष्पा को यूज करेंगे। मतलब अति मात्रा में शुक्र शीघ्र बाहर रहता है, मीन्स इजैकुलेशन टाइम बहुत लेस है, तो वहां पे हम शतपुष्पा यूज कर सकते हैं। या फिर आप अगर ये देखेंगे, जैसे पॉलीस्पर्मिया करके एक होता केस होती है जिसमें स्पर्म की संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है, 100 200 300 पर ml ऐसा हो जाता है, मिलियंस पर ml। तो वहां पे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा स्पर्म होने से अग्लूटिनेटेड हो जाता है, एक दूसरे में फंस जाते हैं और उनकी गति कुंठित हो जाती है, रैपिडली नहीं जाते हैं, वो स्लगिशली या फिर नॉन प्रोग्रेसिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी पॉली स्पर्मिया जो होता है, तो वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। ये शुक्र धात्वाग्नि को बढ़ाता है, एक्सेसिव जो नॉन यूजेबल या फिर कृमिजन्य जो है या डेड है उनको बाहर निकालता है और फिर उसको अच्छी तरीके से कर देता है। और तो मेरा कहना है कि इसको कुछ पहले दिन हम यूज करेंगे और उसके बाद इसको निकाल भी दिया तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप किसी और व्याधि में इसको यूज कर रहे हैं तो आप शतपुष्पा रखिए, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अच्छा ही काम करेगा। जो बाकी के गुण है उसके अनुलोमन वगैरह वातानुलोमन, वो उसके बहुत ही अच्छे काम में। नेक्स्ट, हाँ तो इसमें आगे सेंधव। अब ये कन्वेंशनल है, मतलब हमको डालना ही है, बस्ती है तो सेंधव तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पे सबको पता है ये सोडियम क्लोराइड है, लवण और मधुर इसका रस है, स्निग्ध लघु उसके गुण है, और ये शीत है। बाकी सारे द्रव्य हमने देखे कि ये उष्ण है, लेकिन ये शीत है। और इसका विपाक जो है वो मधुर होता है। अब इसको हमने जो यूज किया है बस्ती में, उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अगर ये निकाल दो तो बस्ती का कोई मायना ही नहीं है। तो ये होना चाहिए, लेकिन इसकी मात्रा को बहुत ही पेक्युलरिटली यूज करना है, बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है। कितना यूज करना है? तो अगर पूर्ण मात्रा में बस्ती है 960 ml, तो इसको 5 ग्राम यूज करना है। इतनी मात्रा में काम कर जाता है। मतलब हम जैसे खाने में जितना नमक डालते हैं उतना है। तो इसी तरीके से कि उसका काम ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, उतना ही सेंधव यूज करना है। नेक्स्ट,
स्लाइड प्लीज। हाँ, अब सेंधव के क्या है, वो दीपन है, पाचन है, रुच्च है, वृक्ष भी है। सेंधव जो है लवण होने के बावजूद भी वृक्ष है, जिसको आप देखेंगे वाग्भट ने तो कहा है उसको दूध के साथ ले सकते हैं, इतना तक वो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो दूध है वो भी वृक्ष है, और सेंधव भी वृक्ष है, तो आप ले सकते हैं, यहाँ तक उसके वृक्ष गुणों को वर्णित है। हाँ, उसको लवण रस को अति मात्रा में नहीं लेना है, इस यहाँ तक ही उसको यूज करना है। फिर वो अरुचि, अजीर्ण, विबंध, अग्निमान्य सबको कम कर देता है। और ये जैसे वामक भी है, और वैसे ही निरोह में भी इसका काम होता है, और ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, इसलिए इसको यूज करना है। ठीक है, आगे। ये कोकिलाक्ष मैंने कहा कि वृक्षवातहर आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो लिया है वो कोकिलाक्ष, अश्वगंधा, शतावरी, आत्मगुप्ता और गोक्षुर, ये 5 द्रव्यों को हमने कोकिलाक्षादिक्वात कहा है। आप इसको यूज कर सकते हैं, ये वृक्ष है, वाजिकर है, रसायन है, इसको ले सकते हैं। और या नहीं तो फिर ग्रंथोक्त जो है वो हमने देखा वो एरंडामूल, तो एरंडामूल को हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, वो अवेलेबल भी है, सस्ता भी है, सबको दे सकते हैं। अब जो मैंने कहा कि हमने ये इतना देखा, अब इसके प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन की तरफ आते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि भाई ये करता कैसे है। तो आप वन बाय वन हम अगर ले लेते हैं तो आपको पता चलेगा। हमने द्रव्यों को शरीर में डाल दिया। Nitin sir, please sir. हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? We can hear you. हेलो, You can start, sir. Yes, sir. We can hear. You Next can slide, start, sir. please. Okay, sir. Start. You can start. The next slide. Can you show the slide? Yes. So we are looking for the probable mode of action. इसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसे हमने शुरुआत की थी कि थर्मल इरिटेशन और फॉरेन बॉडी इरिटेशन, इससे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कहाँ पे? इनर वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। हेलो, ओके। तो इरिटेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इमीडिएटली ट्रांजिएंट वाजोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है। एक बार वाजोकंस्ट्रिक्शन हो गया तो ये फर्स्ट एक्शन होती है बॉडी की, और फिर एक बार वो होने के बाद फिर परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वाजोडायलेशन हो जाता है। मतलब एक Hello, sir. Nitin, sir. Hello, Nitin, sir. वहाँ से इश्यू है, उनके वहाँ से प्रॉब्लम है।
हेलो डॉक्टर नितिन, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। योर वॉइस इज नॉट क्लियर, प्लीज। हाँ, अभी आ रहा है? Yes, sir. Now we can hear. ओके, Thank you, sir. You can do it. ओके. So shall I continue from the first? Okay, sir. Can you see the slide now? हाँ, या. सो फर्स्ट लूकवार्म बस्ती आता है जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी एंड एक्ट एज अ थर्मल इरिटेशन. ये थर्मल इरिटेशन और फॉरेन बॉडी रिएक्शन की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन के इंटरनल पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन पहले हो जाता है, उसके बाद परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसोडायलेशन हो जाता है, जो कि वैस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कराता है. लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, जो कि हम फिजियोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं. और सेंधव जो है वो एक्ट लाइक अ सलाइन वाटर, जो आप देखेंगे चैटर्जी में कि ये सबसे ज़्यादा एब्सॉर्ब होता है सलाइन वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में. इसीलिए यहाँ पे सेंधव का यूज़ है, जो कि मैंने पहले कहा था 960 में 5 ग्राम, दैट इज 0.5 नॉर्मेलिटी के आसपास आ जाता है. आपको एक बार ये समझ में आ गया कि ये 5 ग्राम क्या होता है, तो 0.5 नॉर्मेलिटी के हिसाब से आप ये सलाइन वाटर ही बना रहे हैं क्वाथ में, जो कि सबसे ज़्यादा एब्सॉर्प्शन करेगा सेंधव के गुणों के साथ. तो ये जो है यहाँ पे ये थोड़ी सी हमारे आचार्यों ने बहुत ही अच्छी परिकल्पना की है. जैसे सेकेंड आता है हनी, जो कि हम जिसको बोलेंगे पॉलीसुक्रोज होता है. तो पॉलीसुक्रोज जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एब्सॉर्ब हो जाता है टू लार्ज इंटेस्टाइन. तो ये जो हमारे लिए है ये बहुत ही मायने रखता है कि ये सोच बहुत दूर तक हमको लेके जाएगी. देन वो एब्जॉर्प्शन आने के बाद लुब्रिकेशन और सारे चीज़ों को कम करने के बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वाथ एब्जॉर्ब होगा, और जो मदन फल है वो कल्क है वो इन्फ्लेमेशन करके बाहर निकाल देगा. तो विद इन अ फ्यू मिनट्स ये सारा काम हो जाता है, और द्रव्यों को लिया जाता है, दोषों को बाहर छोड़ दिया जाता है, एंड इट विल बी डन विद इन फ्यू मिनट्स. सो ये है यहाँ की पेक्युलरिटी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट. तो अब इसके यूजेस देख लेते हैं. जो यहाँ पे सिर्फ मैंने उन्हीं को लिया है जो जिसको स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डाटा बोलते हैं. मतलब अगर ये सिग्निफिकेंट नहीं है और स्टिल इंक्रीज है तो उसको नहीं लिया जाता है. स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट का अर्थ है कि मान लीजिए 0.05 है, मतलब 100 में 0.05 लोगों को ये काम नहीं करेगा, बाकी सबको करेगा. तो ये टी वैल्यू के ऊपर से रहता है. तो यहाँ पे हम स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट को देखते हैं. तो जब से हम टेराटोजूस्पर्मिया पे देखते हैं, टेराटोजूस्पर्मिया मतलब मॉन्स्टर लाइक स्पर्म्स. स्पर्म्स की जो है वो हेड, मिड पीस और टेल, ये अगर विकृत होंगे तो उनको टेराटोजूस्पर्मिया कहा जाता है, जो इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण है. इन पे हम अगर डायरेक्टली देखते हैं तो आपको देखेंगे कि फर्स्ट मंथ में ये 33% रिड्यूस होता है, ये टेराटोजेनिक जो स्पर्म है. और फिर सेकेंड इसमें ये 6.7% बच जाते हैं, और फिर ये 100% निकल जाते हैं. ठीक है, तो रिडक्शन कितना हो गया? फर्स्ट इसमें 33% का हुआ, सेकेंड इसमें 6% का हुआ, और लास्ट इसमें 100% का हुआ. ये डायरेक्टली जो दिखता है उसके हिसाब से. और फिर फोर्थ मंथ में ये रिमेन नॉर्मल, मतलब 100% नॉर्मल हमको थर्ड मंथ में ही मिल जाता है, मतलब 2 महीने में काम हो जाता है. अब इसमें ये रिडक्शन और नया निर्माण होने में 72 डेज का स्पर्मेटोजेनेसिस का काल है. तो इस हिसाब से वो चलता है कि जो विकृत स्पर्म है उसको निकाल दिया जाता है और प्राकृत स्पर्म की निर्मित होती है. अब अगर हम एलोपैथी के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये संभव नहीं है. ये जेनेटिक, क्रोमोसोमल और सर्टोली सेल पे डिपेंडेंट है. हम थोड़ा सा नज़दीक पे आते हैं कि सर्टोली सेल अगर खराब है और स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक से नहीं हो रहा है
तो यहाँ पे रसायन होगा, पहले सर्टोली सेल्स के बैड थिंग्स को निकाल दिया जाएगा, ऊपर से नया सर्टोली सेल्स के निर्माण होंगे, उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्राकृत स्पर्म की निर्मित करेगा और वो आपको दिखाई देगा। मतलब जो हम बोलते हैं कि रसायन रसायन क्या है, तो ये देख लीजिए, प्रत्यक्ष प्रमाण में दिखाई देगा कि यह अच्छा निर्माण हो गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे कुछ और भी व्याधियां हैं, जैसे विस्कोसिटी ऑफ सीमेन जो है वो 21% बढ़ गया है, 21 to 22%। वायबिलिटी ऑफ स्पर्म जो है वो 40% तक बढ़ जाता है, मतलब जिंदा रहने की क्षमता स्पर्म की 40% बढ़ जाती है। एमोर्फस मैटर जो गंदगी है उसमें शुक्र में, जो हमको माइक्रोस्कोप में दिखती है, वो 100% निकल जाती है, वो शुद्ध शुक्र दिखाई देता है। स्पेक्युलर डेब्रिज मतलब डेड हुए स्पर्म, वहाँ पे आरबीसी हो गए, कुछ भी हो गए, स्पर्म डेड होके पड़े होंगे, उनको 42% तक वो निकाल देता है। बाद में ये इम्पोर्टेंसी पे, ये इरेक्शन पे काम करेगा। तो ये जो है इरेक्शन पे 17% ये इरेक्शन बढ़ा देता है, और इजैकुलेशन जो है, इजैकुलेशन टाइम पे ये 47% इसको बढ़ा देता है अच्छी तरीके से, मतलब इजैकुलेशन टाइम बढ़ जाता है। तो ये जो है ये विजिबल, और यू कैन काउंट दैट। और ये जो है वो सिंह मेहरा का जो स्कोर है उससे कंपेयर किया गया है, तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये आपको प्रत्यक्ष दिखने वाले इसके गुण हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि माधुतैलिक बस्ती बहुत ही अच्छा काम करता है। नेक्स्ट। हाँ, अब ये ध्यान दीजिए कि ये सब पे सब कुछ काम नहीं होता है। अगर हम ठीक से देखेंगे तो ये इम्पोर्टेंसी को 100% रिलीव करता है, लेकिन इनफर्टिलिटी पे सिर्फ 60% काम करता है। सिर्फ नहीं है, जैसे आप देखेंगे कि आईवीएफ सिर्फ 2% काम करता है, लेकिन फिर भी उसके सबसे ज्यादा सेंटर्स है। अगर ये 60% इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी को काम करता है, फीमेल इनफर्टिलिटी पे भी काम करता है, लेकिन मेल इनफर्टिलिटी पे ज्यादा काम करता है। अगर हम देखेंगे 60% ये करता है, तो मेरे ख्याल से आईवीएफ सेंटर से ज्यादा माधुतैलिक बस्ती के सेंटर ज्यादा होने चाहिए। प्रमेह में ये 40% तक का रिडक्शन करता है, रुद्रशूल में ये 40% तक काम करता है, उदरशूल में, मतलब जिसको हम गुल्म बोलते हैं, उसमें 40% तक रिलीफ मिलेगा। कास, श्वास, अर्श, इसमें 40% तक हमको रिडक्शन दिखाई देगा। जो कम इसमें दिखाई दिए है, इसमें 20% है, जैसे पित्तज, मूत्रकृच्र, अंगमर्द, मन्यास्तंभ, फिर कुरपरशूल, पृष्ठशूल, कटिशूल, दौर्बल्य, गृध्रस्य, आध्वान, जानुशूल, पिंडिकोदोष्टन, उरशूल, उदावर्त, निरुद्ध प्रकर्ष, इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, 20% ही है हालांकि। प्रवाहिका, ग्रहणी, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी हमने इसके रिजल्ट देखे हैं। डिजेनरेटिव सर्वाइकल डिस्क, रसायन, शिरशूल, ये सारे इसके हैं। अब मैं आपको कुछ ये दिखा देता हूँ, वी हैव लेस टाइम, लेकिन ये जो एक डिसीज है, ये क्रॉन्स डिसीज की केस है, मतलब वो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। लगभग 8 साल से ये सफरर था, जहाँ पे आप स्टूल एग्जामिनेशन देखेंगे, म्यूकस 3+ है, फिर मैक्रोफेजेस भी जो है, आरबीसी वगैरह वो भी ज़्यादा है। तो ये बाद में हमने उसको ठीक कर दिया है। ऐसे ही बहुत सारे केसेस है। एक जो है ओएटी सिंड्रोम, ओलिगोएस्थेनोटेराटोजूस्पर्मिया, इसमें भी काम हुआ है। फिर अर्श में भी हमने इसको यूज़ किया है, अर्श के केसेस में भी आप देखेंगे। और ये इसमें से काफ़ी जो है वो इनफर्टिलिटी के केसेस है, और ये श्वास है, श्वास के साथ इनफर्टिलिटी की केस है, तो इनको भी अच्छा रिजल्ट आया है। ये अम्ल पित्त के साथ जो केसेस है, इसमें भी रिजल्ट आया है। मतलब हम इसको सब जगह पे यूज कर सकते हैं एज अ वैदिक। जो मैंने दिखाए वो व्याधि तत्व के कुछ रिजल्ट्स दिखाए। हम इसमें सर्वाइकल, इसमें जो है डॉर्सल स्पाइन में, ये आप देखेंगे मल्टीपल सर्वाइकल डिस्क के प्रॉब्लम है, बल्जिंग, माइल्ड बल्जिंग, डिजेनरेटिव चेंजेस, और फिर आप देखेंगे ये नॉर्मल, उन्हीं की केस है, नॉर्मल डिजेनरेट, मतलब नॉर्मल एमआरआई आया है। तो ऐसे आप विजिबली इसमें देख सकते हैं।
माधुतैलिक बस्ती बहुत ही अच्छा काम करता है। मैं इसके मात्रा को बता ही देता हूँ, हालांकि मैंने बाद में रखा था, वी हैव लेस टाइम। तो मात्रा जो है वो चरक के हिसाब से 960 ml जाता है। अगर हम सुश्रुत की बात करें तो वो पादहीन बस्ती बोलता है, दैट मीन 750 710 750 के आसपास जाता है। फिर उसी ने अर्ध दिया है, मतलब अर्ध बस्ती मतलब 500 ml के हिसाब से 960, मतलब 1 लीटर का आधा, तो 450 टू 500 ml तक का एक माप है। और फिर आड़मल्ल सिर्फ एक पाद बस्ती बताता है, मतलब 200 टू 250 ml, इतने में भी वो काम हो जाता है। तो ये जो है अलग अलग आचार्यों ने कहा है। मैं आड़मल्ल को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि आड़मल्ल के इसमें मैंने सारे दिए हैं, मतलब सारे हमने यूज किए, लेकिन सभी में वही रिजल्ट आते हैं और आड़मल्ल में भी वही रिजल्ट आते हैं, और इससे पैसे भी बच जाते हैं और रिजल्ट उतने ही आते हैं। तो आड़मल्ल का जो एक पाद, मतलब सिर्फ 200 टू 250 ml का जो कॉम्बिनेशन है, वो यूज करके भी आप ये रिजल्ट्स पा सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो हियर आई कंक्लूड एवरीथिंग। थैंक यू एवरीवन। आपको कुछ क्वेरीज होगी तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा टाइम रखने के लिए किया। थोड़ा सा अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते Thank you very much, sir, Nitin sir, for the enlightening session on Madhutalik Basti. Sir, can we start question answer session? हैं। या प्लीज। Okay, sir. Now the forum is open for question answer session. I request Dr. Bipin Shah, RS Assistant Professor, Department of Panchakarma, to conduct the same. Yes, sir. Thank you, Chandra, sir. गुड आफ्टरनून। So, good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून। Okay, sir. So now we can start our question answer session. For the listeners, please add your queries in the live chat box. Between any of one in the meeting is having any queries, you can ask directly also. So, sir, I think we have a question. हाँ हाँ, आप किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। Okay, sir. Sir, the question is, apart from the general pharma indication, is there any special condition in Madhutailika Basti it should be avoided? Okay. As far as I did so many cases, I feel there is no other even some cancer patients we use this. Okay, so only for to maintain their lifespan. Okay, but I don't think that there is any problem or any particular that we should not give. That is only patient says okay, I don't want, then but if they want, you can give it without any problem, without any hesitation. Yes, the garbhini, sutika, and very small children, that means below 4 years, you should not start immediately with Madhutailik Basti. Even if you want, avoid all the other elements like kalka dravya, kvata dravya, give according to charaka, but the mud and tail is equal amount, and that's only. But I never use below 4 years, so I cannot say on that. But on Niruddha Prakash we use this particularly Madhutailik. But don't worry about it, it's very safe, and you can give but the matra is according to the child and according to other. And in Vruddha, you can give it blindly, so they feel so nice that if they have a constipation or something, and every time they feel something uneasy,
You can give it daily also, but don't exceed till 10 days. Okay. After 10 days, you have to stop, and then wait for some time, and then again start. Okay, sir. Thank you, sir. The next question is there any special Madhutailika Basti yoga for that can be practiced for eye disorders? Eye disorders. Okay. You can use as Madhutelics for the, because it's a Shukra Sar. Eyes are Shukra Sar. So if you can use Vajika Dravya also. And if you, even if you want to go for particular eye diseases, like in diabetic retinopathy or something, you can use dravyas which is useful in prameha, or you can use Triphala, Amalaki, or Haridra. This type of medicine you can use in prameha, or you can use only Triphala and other Netra Dravya in Netra row. So according to Vyadhi, you can change the Kvata Dravya. There's no problem. But if you go from my point of view, use this Vajikar Dravya, because if the Sarata will be better, automatically eyesight will be very nice. Okay. But if it is a disease condition, go for the Dravyas which is useful for the Netra Roga. Thank you, sir. So the other question is, have you ever compared the efficacy of Madhutailika Basti with Gudatailika Basti in your practice? Can we use Gudatailika Basti? Sorry, I can't hear you. Sorry, sir. The question is, have you ever compared the efficacy of Gudatailika Basti with Madhutailika Basti? Can we use Gudatailika Basti in financial constrained patients? I hear two sounds. What? Sir, the question is, I can't have hear you you ever? properly. So, Can you hear me, sir, now? The question is, have you ever compared the efficacy of Gudatailika Basti yes, with Madhutailika again, Basti? same problem. Can you hear me, sir, now? I hear only start. Okay, can you hear me now? Yes. Sir, the question is, have you ever compared the efficacy of? Can you hear me, sir? Yes. Have you ever compared the efficacy of Gudatailika Basti with Madhutailika Basti? Can we give Gudatailika Basti? Perfect. Good question. See, there is very good. Yes, definitely. And where it is the problem, I will give you some brief history. First, there is a Madhutailik only. Then there is some acharyas from Jain community comes, and they avoided animal product like honey and ghee, and they invented such a beautiful combination like Gudatailak Basti. It's the same like Madhutailik Basti. And you get one research in Jamnagar, they compare under the guidance of Gurpreet Singh, they compare Guda with the honey. So it is a Purana Gud. Don't worry about it. It's as same like honey. Only you cannot expect Vajikaran, you cannot expect Pramehana, you cannot expect Medohar from this Gudatailak Basti. Other Vatahara, other properties, you can go for Gudatailak if you don't get honey. Even I said, even if you get adulterated honey, you can use that. Thank you, sir. Sometimes they use honey, some jaggery in honey. That is adulteration. So even that will be okay. But if it is a Purana Gud, then no, don't worry. It will act same like Madhutailik. Only you cannot expect the Vajikar and Pramehana and Medohar property from Gudatailak Basti. Okay? But you can go for Yukta Ratha, you can go for Vatahara, you can go for other. Okay, thank you, sir. The next question is,
What is your opinion about why Madhu and Taila is used in Hello? same quantity? I can't hear you. Sir, the question Sorry, is, I can't. hello, sir. Yes, I beg your Why pardon. Madhu and Taila is mentioned in same quantity? Sorry, I can't hear you. Uh-huh. Sorry, I only hear the first line. Sir, what is your opinion about why Madhu and Taila is used in same Even quantity? the video is not. Uh, Okay, sir. Can you hear now? ah, The see, there are different opinions. Yeah. I heard the question that why we are using Madhu and Taylor in equal amount. No. yes, sir. Yes, sir. Hello. Is that a question? Okay, I will start giving answer because I can't hear you. But I heard that is why we are using Madhu and Tail in equal amount. Yes, Okay, sir, that is the same there question. is a very best thing about this that this is the best way that these two equal and potent drugs, if we mix them together, then they act. If they use in otherwise, they don't act like a rasayan or vajikaran. You will get that answer in सुश्रुता. सुश्रुता आपने अगर पढ़ा होगा तो वहां पे मध, तेल, घृत और जल, इनको रसायन बताया गया है। और अगर हम इनको इक्वल अमाउंट में लेंगे तो ये अच्छा तरीके से काम करता है। लेकिन इफ यू ऐड मध विद घृत इन इक्वल अमाउंट, व्हाट विल हैपन, यू नो कि सबको पता है कि ये विष बनेगा। लेकिन मध और तेल करेंगे तो वो एक दूसरे को एनहांस करते हैं, जिससे कॉम्पेबिलिटी, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता है। और ये इक्वल अमाउंट में होंगे तो ही काम करेंगे। आप उसको कम ज्यादा करेंगे तो ये डेफिनेटली अलग तरीके से काम करेगा, लेकिन माधु तैलिक का काम नहीं करेगा। सो इट्स अ वेरी ग्रेट थिंकिंग ऑफ आवर आचार्य दैट कि इसको इक्वल अमाउंट में ही लेना है। करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। और रिजल्ट मात्रा में लेना है, ठीक है, मतलब ml में ml लेना है, ग्राम में ग्राम लेना है। आप सॉरी, ग्राम में ml ऐसा नहीं लेना है। मतलब हनी हम ग्राम में यूज करते हैं और तेल हम इसमें यूज करते हैं ml में, ऐसा नहीं करना है। आप अगर 50 ml तेल ले रहे हैं तो 50 ml आपको हनी लेना पड़ेगा, तो ही ये काम करेंगे। इक्वल अमाउंट है, इक्वल वेट नहीं है। तो और ये तभी काम करते हैं जब वो इक्वली एक दूसरे के इसको एनहांस करेंगे। अगर वो कम ज्यादा होंगे तो वो एक दूसरे के जो गुण है उसको नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि तेल को कम लिया जाए तो रुक्षता बढ़ जाएगी। अगर आप सोचेंगे कि तेल को बढ़ाया जाए, हनी को कम। Hello, sir. Sir, your audio is breaking. सॉरी, ये बीच में डिस्कनेक्ट क्यों होता? Okay. Sir. Okay. Now we can hear you, sir. हाँ, you got the answer or should I explain Yes, again? yes. Thank you, sir. Sir, the next question is, can we give Madhutailika Vasti in Ama and Sama Avastha? Ama and Samavastha. Okay. So, according to Granthakara, Ajirna is the problem. Ama and Sama is not a problem. Even if you see the Prameha, Medoro, Krumi Koshta, these are all these type of diseases that there are something which is already undigested and too much of things are in the body. So Medorog is also there. So I don't think there is a problem of Sama or Ama. You can give it in the Amvat also if it is needed, but it's not a drug of choice in Amvat, everybody knows. So I'm not saying that it is contraindicated. I'm saying in Sama and Ama Avastha, you can use it. Okay. Okay, thank you, sir. Sir, there are many questions regarding the quantity of ingredients. Can you brief the quantity of ingredients? Okay, as I mentioned that I come to, मतलब हम आड़ मल्ल पे ही आते हैं।
Admalla is the one who narrated this. He said is the Ekapada is sufficient. So if we take 50 ml of honey, 50 ml of tel, that is 100 ml. So 100 ml of quath is sufficient, and 100 ml of quath, and if you give Sandhava, Kalkadravya, they all together maybe a 5 gram, or you can say that according to this if you reduce is 1/4, you have to reduce all the ingredients to 1/4. Okay, and this is a sufficient amount. That means 200 to 225 is a sufficient amount for a Madhutailik Basti. Sir, there is one more question regarding the content. If it is in a Medoro, how will you alter the content of honey, Saindav, and Erindamula cloth? See what I have shown you, honey, Sandhav, and Kalkadravya, it is not going to change in any way. In Medorog also, you only have to change the Kwatha Dravya. So it will act accordingly. But as a सुश्रुता ने कहा है कि एरेंडामूल का उस पे भी काम हो जाता है. So we can go on thinking कि सिर्फ एरेंडामूल ही यूज करके उसके पे भी काम कर सकते हैं. But if you use मेदोहर द्रव्य instead of erendamul, they will give tremendous result. But the quantity of honey, taila, sandhava, kalka, it remains the same. It's not going to change. See, basically, basti is it's a particular ingredient, okay, and basti is a mode of route of administration. So don't mix with that, okay. You cannot compromise with anything. It's here is only sama pramana of madatail. That's the rule, and that is sufficient quantity. That means 50% of the quatha. That is the main. So if the 50% of quatha means total is 100, that means 50 is madhutail only. That's why it's called as madhutailik basti. So don't worry about it. You can go on Medoro and you can use Medohar Dravya. It will give more result. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, then But there don't are use Anuvasan in between, okay? okay, sir. Sir, there are many questions regarding the pattern of Madhu Tairika Basti you are following, and also there are many questions regarding how many bastis that can be given at a time. Madhu Tairika Basti. In a day, 10 days, one basti per day. That is a means a actually rule. But you can mold it like this way, like 7 days you can give. Like we always mention that ki 7 dhatu hai, so every day there is one santarpan of each dhatu. So you can go for 7 days. But if the patient is affordable and you have you can give, so give a gap of 7 days to 10 days in between 2 basti and give it 3 times in 3 sessions of the basti. That is very sufficient and it gives a tremendous result. Okay, thank you, sir. Sir, there is one more question. That is, will a Siddha Taila enhance the result? Again, I can't hear you. Sir, if You are we are muted. using... Oh, sir. Can you hear me? Hello? Can you hear me, sir? Hello, sir. I can't hear you. Can you hear me now? Hello? Hello, sir. Can you hear me? Yeah? The question is, will a Siddha Taila enhance the result? Again, I can't hear Instead you. of Yes. use of Siddha Taila, can it enhance the result instead of using plain Taila? Okay. No, I never saw this Siddha Taila instead of Tila Taila. So I can't talk on that. But yes, it's possibilities you can use Siddha Taila. But I never use because according to me, it's a Niruha. So it's not going to stay for a longer time in the body. So I particularly say when it is Niruha, don't use Siddha Taila. If it is Anuvasan, use Siddha Taila. It will be less
it's economical. So actually, we are charging for Mada and Tela. If you use the Siddha Tela, the price will increase, but there's no harm. You can use Siddha Tela, Okay. but I Thank never you. use it, so I can't talk on that. Sir, can we use it to treat Kavaigunia, which is formed after treating RA? Can we use Hello? Madhutailika Basti to treat? Sorry, I can't hear you properly. Sir, one second. Sir, can you hear me now? Hello? Hello, sir. Matra Basti. No. Can we Sorry, use? I'm not getting your question. Sir, can you hear me now? The question is, can we use it? Can we use it to treat Kavaigunia, which is formed after treating RA? Yes. Sorry, I can't hear your question. The question is, can we use it to treat Kavaigunia, which is Sorry, formed now I after? can't hear you. Sir, can you hear me now? The question is, can we use it to treat? Sorry. Yes. Can we use Madhutailika Basti to treat Kavaigunia? Hello, sir. What happened? I don't understand. Sir, your audio is breaking. Can we use Madhutailika Basti to treat Kavaigunia that formed after We treat? use Madhutal. Which Vaigunya? Which is formed after treating RA. Hello? Sir, can you hear me? Yes. The question is, can we It's use? a deformity after RA. Yes. No. This is a Santarpan type of Basti. It is Bruhan also and Lekhan also. It will not, in Amvat or rheumatoid arthritis, you need to release the things. That's why the Tikshna Vaitaran Basti is there. You cannot go for some Mrudu. Mrudu Nirvaha is not useful in. Thank you, sir. Actually, I think we are running out of time. Can we put the? We will. The chat will be put in the description, and we will share it with you, sir. We can give back the answers later. Oh, that will be fine. Okay, sir. That will be fine. We will switch on to the next section. We are likely to call our director, sir, respected Dr. Professor C.H. Bagria, sir, for the presidential address. Sir, please. So your mic Sir, is we off. cannot hear you. Your mic is off, sir. Yeah, hello. Yes. Hello. Okay, sir. Now we can. Now it is audible. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Hello, Dr. Nitin. How are you? Fine, sir. Thank you, sir. Yeah, namaskar. How are you? Yeah, good. Everything is fine there? Yeah, sir. Everything is fine, sir, here. Yeah. But only the Yeah, lockdown is still going on. Yeah. Oh, of course. Everywhere it is, right now. सभी जगह ऐसा है, क्या करें? Yeah. सभी First of जगह, all, sir. yeah. First of all, I want to thank you for a wonderful session. Okay. And it is the tradition of CVM University to always welcome activities which instill practical proficiency in the staff and students of its various colleges. Today's lecture was arranged in the same connection. And you, particularly Dr. Nitin, has elaborated the basics of Madhutalik Basti
and very skillfully explain how it can be utilized in various conditions for the betterment of patient. Many treatments are explained in Ayurvedic classic, which need to be evolved in modern concept and used extensively. I hope today's session would help the participants to clear every doubt about the Madhutalik Basti and encourage them to use Madhutalik Basti more generously in their day-to-day practice. I'm thankful to all the participants who have taken out their precious time to listen to this wonderful session and want to inform that we will be reaching out to you with many rational activities in the upcoming days. And I'm also thankful to uh, head of the Department of Panchakarma and entire team of the Panchakarma department, and as well as team GJ Patel Ayurved College for this session, this webinar for arranging this webinar. Some technical faults are there. For that, I apologize to all of you, and we will take care about this in future. Okay, thank you again, thank you all. Thank you, Babaria sir, for your kind words. So we are moving to the last session. So first of all, we have to thank our respected speaker, Nitin Bise sir. We are pleased to have your participation in this outstanding presentation. Thank you, sir. Your valuable contribution of knowledge to our students, faculties, and all our listeners. It was very great. And we are also happy to know that you're keeping some of your time to participate in various scientific sessions and discussions from various parts of our country in your busy schedule. It's the most valuable thing that a disciple of Ayurveda can do for the future generations. Thanks a lot, sir, for sparing your precious time with us. So we are also again thankful to our CVM University, especially Engineer Sri Bikubai Patel, sir, President of CVM University, Chairperson, and Chairman of Charuta Vidya Mandal, who is a constant driving force of encouragement for the conduction of various activities in our institution, for the benefits of faculty as well as for the students. We are also very much thankful to all the authorities concerned to the CVM management. And we are very much blessed with the constant support and encouragement from our respected director, Professor C.S. Bhardiya sir. Your strong vision, guidance, and support is behind all our activities. It makes our effort fruitful. Once again, thanking you also, sir. And I am also very thankful to our faculty members, Gayatri Gandhe Madam, Kundan Chaudhary sir, Daksha Madam, and Priya Madam for their ideas, timely cooperation, and support in the smooth conduction of the webinar. We are also thankful to the faculties and students of our institution and all the participations from different parts of our country. About 45% of the registrations were done by the PG scholars and UG scholars from different universities, including Gujarat Ayurveda University, Rajiv Gandhi University, Maharashtra University of Health Science, Kerala University of Health Science, and Amrita Vishwa Vidyapida. Without you all, our webinar will not be a good success. So, with the Department of Panchakarma, thanking you all once again. And everyone, please don't forget to fill out the feedback form. After successful completion of the feedback form, you will receive the e-certificate. Thank you all once again. Thank you, sir.